In previous session, we had discussed about process of planning of chapter 4 planning, in which there were 7 steps we have we have discussed. Okay, first step was setting of objective, second of developing of premises, third finding various alternative courses of actions, fourth evaluating alternative courses of actions, fifth selecting alternative courses of actions, sixth implementing alternate course of action, and seventh follow up. So we have discussed total 7 step of process. I hope you all have understood all 7 steps, and you have written in your notebook also. If still not written, then please write down in your notebook. Okay, so today we are going to learn features of planning. Okay, before features of planning, first I would like to again briefing you about meaning of planning. So here on the screen you will see planning definition, in which there is written thinking in advance, what is to be done, when is to be done, how is to be done, and by whom it should be done. uh, by by the definition it's clear to all of you, by the meaning it's clear to all of you कि कुछ भी चीज़ हम जब प्लान करते हैं तो इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस. कोई काम को करने के पहले ही हम उसे प्लान करते हैं. ओके, सो दैट्स वाई हियर इज रिटन थिंकिंग इन एडवांस. व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इज़ टू बी डन, कौन और किन साधनों के द्वारा करना है. ओके, करना चाहिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. एंड one more thing, it we can say it is a primary function of management. Okay, that's why before doing any work we should plan. प्लानिंग टर्म आपके लिए किसी के लिए भी नई टर्म नहीं है. आप लोगों ने भी सबने किसी न किसी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग किया होगा. ठीक है, आपके अपने स्कूल में डेली मॉर्निंग असेंबली वगैरह होता है. मॉर्निंग असेंबली आपका हर साल में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि मंडे असेंबली तो मंडे आप डायरेक्ट वहाँ पे मॉर्निंग में गए और आपने असेंबली कंडक्ट कर दी. बिफोर वन वीक बिफोर 15 days यू आर प्लानिंग विद योर क्लास टीचर. नाउ features of planning. Okay, features of planning, in which it has covered 5-6 features. Okay, so we will go through with the first feature, planning contributes to objective. Planning contribute to objectives. Planning is purposeful. It has no meaning unless it contributes to achievement of predetermined organizational goal. So planning, mostly why we are planning, because the things which we are planning, it helps in contributing for achieving objective. But if our purpose is not solved, if we are not able to achieve planning, then it has no meaning unless it contributes to the achievement. So definitely whatever we are planning, it helps in contributing our achievement. It helps in contributing our desired organization goal. Second feature is planning is primary function of management. Second feature is planning is primary function of management. So here primary function means आप कुछ भी काम करेंगे, at your home also, at your school also, if you want to achieve any goal, तो सबसे पहला काम ही आपको क्या करना, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे सबसे प्रथम वर्ग ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई इट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट हैज टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर. Every manager, it means if any departmental objective is made by the manager, then they have to plan also. Then top level must have to plan also. Okay, because after planning all functions can be used of management, but first function is always used for contributing or for getting completion of objective is planning.
नो अदर फंक्शन कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। ये मतलब कि आप सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन को ही क्या करोगे, यूज़ करोगे, और उसके बाद में ही आपका कोई सा दूसरा फंक्शन यूज़ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक आपके बाकी फंक्शन मीनिंगफुल नहीं है, सब यूजलेस होंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग। नाउ आफ्टर दिस you will see some more points in which see here is primary function of management. Second point, primary is the function, first function to be performed by every manager. No other function can be executed by the manager without performing planning. Now third point, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मैंने पहले भी आपको मैनेजमेंट के टाइम पे बताया था, परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, ओके। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर। सो प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एवरी डिपार्टमेंट, वेदर परचेज, सेल्स, auditing, marketing, etc. needs systematic planning. In an organization there are many departments are there, such as marketing department, purchase department, sales department, research department. So every department has their own systematic planning in respect to organizational goal. हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है, लेकिन उन सब की जो प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ओवरऑल गोल होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग दे आर प्लानिंग देमसेल्फ। देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हम प्लान क्यों कर रहे हैं, हम प्लान काहे के लिए करते हैं, फॉर द फ्यूचर, टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई इट इज सेड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज नेवर फॉर द पास्ट। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक predictions and assumptions for, so it is futuristic in nature, okay. All the managers try to make prediction and assumption for the future. यहाँ पे जो भी प्लानिंग की जा रही है, whatever is the part of planning, it's just a prediction and they all are just a assumption for future. It means whatever during planning manager is whatever during planning manager is assuming it is just a prediction, okay. It is just a prediction for the future, okay. Then after that, fifth point is planning is a continuous process. Continuous, we can say it is a cyclic nature. Planning is never ending or continuous process, never ending or continuous process, because after making plans also one has to be in touch with changes and changing environment and the selection of the one best way. मैंने प्रोसेस में कल आपको बताया था कि प्रोसेस के अंदर इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन के बाद में सिलेक्शन होता है, एक वन बेस्ट वे, वन बेस्ट मेथड वे ऑफ प्लान को यूज़ किया जाता है. सो सेम ईयर ऑल्सो, एंड समटाइम आफ्टर मेकिंग प्लान, if there is required some changes, if there is required any necessary of change, then definitely manager has been changed some things, or they introduce new plan with the existing plan, okay. और कहीं ना कहीं कभी कभी कंबाइंड प्लान मैनेजर्स बना लेते हैं, ठीक है. तो कंटिन्यूस है. अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन फर्स्ट प्लान अगेन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड वन मोर गोल टू अचीव. For that also management again redo planning. Then planning involves in decision making. Planning choice making of the best possible alternative out of various alternatives. In previous class we had discussed process of planning, जिसके अंदर अपन ने बोला था, एक पॉइंट था जिसके अंदर अपन ने बोला था फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, ओके. तो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस तो होते थे हमारे पास में, बट इट इज़ मोर देन वन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. एक ही काम को करने के मैंने बताया था मोर देन वन वेज होते हैं. मोर देन वन मीन्स 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम कर सकते हैं. लेकिन प्लानिंग क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. हम उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई प्लानिंग हेल्प्स इन, और प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग. गॉट इट. देन
after this you will see seventh point, which is last point of planning. Planning is a mental exercise. It requires higher thinking in planning assumption and predictions regarding future are made by scanning the environment, which requires higher level of intelligence. Okay. Why it is called mental exercise? Because it requires higher thinking. आप टॉप लेवल में हैं, आप टॉप लेवल हो, आप मैनेजरल लेवल में हैं, ठीक है, आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं, आप डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं. सो इट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी डिसीजंस ले लेंगे, है ना. व्हाट यू आर एज्यूमिंग, व्हाट यू आर प्रिडिक्टिंग, इट्स रिगार्डिंग फ्यूचर, और फ्यूचर यू आर नॉट एबल टू स्कैन राइट नाउ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या अनसर्टेनिटी होने वाली, क्या सर्टेनिटीज रहेंगी, ठीक है. सो ड्यू टू दैट रीजन it becomes a mental exercise for the managers, and due to that only it requires higher level of intelligence. Then after this you will going to study importance of planning. जैसा आपने भी देखा फीचर्स के अंदर तो क्या क्या पॉइंट थे आपके पास में. इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी फंक्शन था, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है. इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंपॉर्टेंस ऑल्सो. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. सिंपली है, अगर आप कोई चीज़ें प्लान करते हैं, जैसे अभी मैंने मॉर्निंग असेंबली का एग्जांपल लिया था, चीज़ें प्लान होती है जब आप मॉर्निंग असेंबली में देखते हैं. जैसे सपोज करो न्यूज़ बोलना है, मंडे को आपको न्यूज़ बोलना है, तो वहाँ पे स्टेज पे ऐसा नहीं होता है कि आप सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं. सबको पता रहता है किसका ऑर्डर कब होगा, कौन कब जाकर बोलेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है. क्यों ऐसा क्यों होता है, सबको पहले से क्यों मालूम है? क्योंकि आप सभी को पहले से मालूम है कि मेरा वर्क क्या है, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, ठीक है. तो सेम इन प्लानिंग importance of planning also, it provide direction. Planning provide directions to the efforts of employees. Planning makes clear what employees have to do, how to do etc. क्योंकि आपने पहले प्लानिंग कर लिया, आपने सारे जो डायरेक्शंस वगैरह थे, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह थे, इट इज़ ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड फॉर द एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉय के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उसको करना क्या है, कैसे करना है. उसको सब पहले से ही पता होता है कि मेरा जो रोल है, एक्चुअल रोल, ओके, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा एक्चुअल रोल है वो मुझे पता है. जैसे क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन 7वें 8वें नंबर पे आता है, वो इन केस कभी कभी, जैसे सपोज कोलकाता नाइट राइडर की बात करें तो उसके अंदर पिछले 2 साल से जो शिव नारायण जो है, जो बॉलर एज वेल एज बैट्समैन भी हैं, ठीक है, तो वो ओपनिंग करने आता है, ठीक है. और ओपनिंग करने आता है तो उसके पहले जब उनका टीम मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है तो उसका रोल डिफाइन किया गया है कि आपको जाके सिर्फ क्या करना है, हिटिंग करना है, उसके अलावा आपको आपके विकेट की चिंता नहीं करना है. तो सिंपली है ड्यूरिंग प्लानिंग, ओके, ही गॉट एडवाइस और ही गॉट डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज टीममेट्स और मैनेजर और टीम कैप्टन. तो उसे अपने माइंड में एक माइंडसेट उसका क्लियर है कि मेरा रोल क्या है, मेरा काम क्या है. तो ये कब होती है चीज़ें, जब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब ये चीज़ें क्लियर होती है. सेकेंड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं, हम उसे बिल्कुल रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, हम उसे कम कर सकते हैं. सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions. द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम अनसर्टेनिटीज. जब प्लान किया जाता है तो फ्यूचरिस्टिक वी आर प्लानिंग and we are taking some assumptions of futures, some assumptions which can be happen in future, okay. We are predicting some uncertainties and according to that only we are making plans. So due to that plans are made to overcome uncertainties. Got it? Now point number 3, planning reduces overlapping and wasteful activities. क्या होता है, जब चीज़ें प्लान होती है तो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है.
ऑर्डर होता है मीन्स सीक्वेंस होता है, पहले कौन सी चीज़ होगी, पहले सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, वट एवर इज देयर। ओके, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। कोई चीज़ हम करने से हमारे करने से छूटती नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि कोई भी चीज़ हमारे द्वारा करने से नहीं छूटती है। और सेकेंडरी ऑप्शन, जब कोई चीज़ आपसे करने से नहीं छूटेगी तो आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इससे आपकी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दो सबसे बड़े एडवांटेज है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगा और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा इफ़ यू हैव प्लान फॉर योर ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग सर्व इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, planning serve as the basis of coordinating, planning serve as the basis of coordinating the activities and efforts of different departments and individuals, and the work can be done smoothly. Okay, so planning serve as the basis of coordinating because in organization there are many departments, तो सभी लोग प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल प्लान करता है वो उस प्लान को कोऑर्डिनेट करता है सारे डिपार्टमेंट से, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स, बिकॉज वर्क कैन बी डन स्मूथली, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम वगैरह चल रहा है वो स्मूथली चले, जिससे कोई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ वगैरह ना हो और काम भी स्मूथली हो। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ओके, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जब हम कोई प्लान करते हैं तो डेफिनेटली देर आर मैनी आइडियाज़ कम फ्रॉम द मैनेजर्स, कम फ्रॉम द एम्प्लॉयज साइड, एंड देर आर मैनी सजेशंस विच कैन बी वी कैन इन्वॉल्व इन योर प्लानिंग ऑल्सो। ओके, सो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, जैसा कि अपन ने बोला था मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। दैट्स वाई इट इन्वॉल्व्स हाई थिंकिंग, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, and it is an intellectual process, so it makes the manager innovative and creative, and due to mental exercise only manager is getting innovative and creative ideas for the objectives. Now next point is फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अपन ने फीचर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेट डाउन द हेल्प मैनेजर्स टू टेक फास्ट डिसीजन। जब आपको आपका टारगेट पता होता है, ऑब्जेक्टिव पता होता है, हाउ वी कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, देन इट हेल्प्स और इट फैसिलिटेट्स टू द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। ओके, सो मैनेजर कैन टेक फास्ट डिसीजन। ओके, देन सिक्स पॉइंट इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब हम कोई प्लान करते हैं तो हम उसके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग एक फंक्शन है का, ये भी जो प्लान मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोलिंग, जैसे प्लानिंग है। लेकिन कंट्रोलिंग जब की जा सकती है जब प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन हो, कोई काम को करने के बेंचमार्क डिटरमाइन हो। क्योंकि अगर काम करने के बेंचमार्क होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, तब अपन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द वर्क, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस किए हुए उस प्लान को हम और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसको रिवाइव करते हैं, उसको हम एक बार एनालाइज करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे काम को करने के, या हमने जो बेंचमार्क सेट किए थे उस काम के, एज पर द सेम स्टैंडर्ड और सेम बेंचमार्क काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। दो परफॉर्मेंस होती है। जैसे एक बच्चे को बोला आपको एक दिन में यू कैन राइट 8 पेजेस इन 1 आवर, ये स्टैंडर्ड है, तो उसको अपन ने 1 आवर में 8 पेजेस लिखने को दे दिया। लेकिन अब एट द एंड ऑफ 1 आवर अपन ने उससे देखा कि उसका काम तो कितना हुआ, 6 पेजेस का ही हुआ। तो स्टैंडर्ड वर्क कितना था, 8 पेजेस इन आवर, एंड व्हाट ही हैज डन 6 पेजेस इन आवर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने पेजेस का है, 2 पेजेस का है। दैट इज कॉल्ड डेविएशन। ओके, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस डेविएशन को फाइंड आउट करने के बाद में ये 2 पेजेस कम क्यों आए, इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम क्यों हुई, उसका रीज़न जानेंगे। उसका रीज़न जानने के बाद में विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग हम कोई रिमीडियल एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं।
सो दैट्स वाई प्लानिंग हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के दौरान बना लिए तो हमारे को क्या होगा, कंट्रोलिंग करना ईजी हो जाएगा, और कंट्रोलिंग बहुत नेसेसरी पार्ट हैगा, क्योंकि जो भी गड़बड़ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम अगर किसी रीज़न से हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस तरीके से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे अपन डेविएशन निकाल कर, ठीक है, जो हमारी कमी है उस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। लेकिन वो भी कब है, जब आप प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेंगे, ओनली इन दैट केस ओनली वी कैन डू। नाउ सेवेंथ वन इज focuses attention on objective of the company. The employee follow the plan that are leading towards the achievement of objective. The efforts of the employees are directed towards the achievement of organization goals and objective. So simple है, आपका प्लान होता है, आपके पास में ऑब्जेक्टिव पहले से पता होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, it helps to each and every individual as well as manager as well as workers, helps them to attention on objective only. The employees follow the plan that are leading towards the achievement of objective. The efforts of the employees are directed towards the achievement of organizational goals and objective. So student, in today's session we had discussed meaning of planning as well as importance of planning and features. Okay, I hope you all are understood with the features and importance of planning. Or yesterday session we had already discussed process of planning. So I hope you all have understood about features as well as importance and process of planning. So you all have to write down, you all have to make notes into your notebook. You have to write down importance of planning in your notebook as well as features of planning. Point wise you have to write down all the points, and you have to remember point, because point is necessary here. And in importance and features there is no sequence required. मैंने जैसे कल बताया था कि प्रोसेस के लिए आपको सीक्वेंस रखना जरूरी है, बट इसके लिए आपको कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है. Got it? So tomorrow we'll discuss, we'll have one revision session of not revision, we have still limitation is left. So tomorrow we'll discuss limitations of planning. After limitation your chapter 4 will complete, or your chapter 4 will finish. Okay, so in tomorrow session we'll discuss limitations of planning. Thank you so much, have a nice day.